तो वो डिजिट यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ डिजिट चेंज करना पड़ेगा। उधर 4 कम हो गया ना। क्या 4 क्यों? वो प्रगति उसका हटाया था ना, तो यहाँ से तो हटा दिया था। यहाँ से वो क्या 15 था ना बेटा? हाँ 17 थे बच्चे। हाँ तो अभी यहाँ 17 था लिखा था। हाँ तो 2 बच्चे हट गए तो 15 हो गया ये। हाँ और यहाँ 35 थे बच्चे, वो हाँ। एक्सटर्नल, तो 31 हो गया। ये मिस हो गया था। ये 17 यहाँ 17 लिखा, 35 लिखा था वो। Ma'am, am I audible to you? You're audible, doctor. इसको फुल स्क्रीन करके रखना हिमांशु। हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु। हाँ जी मैम, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। हाँ जी। मैम प्रणाम। A very good afternoon to respected dignitaries, governing body members of RAV, Director RAV Dr. Vandana Siroha ma'am, Gurujans, I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. Today's guest speaker is Professor Vaidya Meeta Kotecha ma'am, who has joined us today in the 2 to 7th episode in association with AM Association of Manufacturers of Ayurvedic Medicines. I, Dr. Himanshu, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Trigunaji, President GBRAB, respected Vaidya Shri Rajesh Kotecha Sir, Secretary Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Siroha ma'am, Director RAB. Let us begin the session by seeking the blessings of Bhagwan Dhanvantri. Now, I would like to invite Dr. Pradeep Multani sir, President AM, for a special address. Please, sir. Thank you very much. Good afternoon to everyone. On behalf of AMAM, I warmly welcome you all to this webinar on nurturing women's health
with common kitchen herbs available around us. Association of Manufacturers of Ayurvedic Medicines is the apex body of around 130 plus manufacturers of Ayurveda, Unani, veterinary products, actively involved in promoting the ASU sector as a whole and representing their issues with government bodies at various levels. We are committed to work with full efforts to take Ayush sector to every household in India and abroad. Majority of the leading companies are our members. As you all know, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji yesterday launched the nationwide Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan, an inspiring initiative for empowering women and families towards a healthier India. This webinar is our humble step as a part of Jan Bhagidari to resonate with the vision of our respected Prime Minister. We express our sincere gratitude to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth and Dr. Vandana Siroha for their valuable support in organizing this program and connecting us with our learned gurus and Ayurveda disciples. We highly appreciate the excellent work of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth and congratulate Dr. Vandana Siroha and her full team. Our respectful regards to Vaidya Shri Devendra Trigunaji, Patron Namam, for his constant guidance and blessings. Our respectful regards also to Secretary Ayush, Vaid Rajesh Koteja ji, for always being a big support to Ayurveda industry. With heartfelt thanks, we welcome Professor Dr. Meeta Koteja, ex-Pro Vice Chancellor, National Institute of Ayurveda, Jaipur, for kindly accepting our invitation at short notice to deliver today's address. Dr. Meeta Koteja ji is an expert of Ayush system, and we have the greatest respect for her. Madam, we eagerly look forward to your session and to gaining pearls of wisdom from Ayurveda. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind gesture. Now, I would like to introduce today's expert, Professor Vaidya Meeta Kotecha ma'am, former professor and head department of Dravyagun, former Pro VC and Dean, UG Studies, National Institute of Ayurveda, Jaipur, who is going to throw light on the topic herbs from kitchen garden to nurture women's health, Swasth Nari, Sashakt Nari. It is my privilege to welcome Professor Vaidya Meeta Kotecha ma'am. Professor Kotecha's illustrious academic journey began as lecturer and head at the PG Institute of Ayurveda, Chitrakoot. She then served the National Institute of Ayurveda, Jaipur, with dedication for more than 25 years as assistant professor, then associate professor, and later as a professor. She has shouldered key leadership roles as head of department of Dravyagun, Dean of UG Studies, and finally as the Pro Vice Chancellor. Alongside her administrative responsibilities, she has guided over 40 MD theses and 9 PhD scholars, authored 3 books, published more than 100 research papers, and delivered over 110 expert lectures at national and international forums. Her immense contributions to research, teaching, institutional development, and Ayurveda at large have earned her recognition as a chairperson and member of several committees of Ayush, NIA, and Rajasthan Ayurveda University. Now, I would like to invite ma'am to proceed with the lecture. And it's a humble request to all the participants to kindly switch off their mics and cameras during the session. Please, ma'am. सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आरएवी के सभी पदाधिकारी, वैद्य त्रिगुणा जी, डॉक्टर वंदना सिरोहा जी, डायरेक्टर आरएवी, और अमाम एसोसिएशन के भी सभी पदाधिकारी और स्पेशली प्रदीप मुल्तानी जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब ने मुझे यहाँ आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। अभी पोषण पखवाड़ा भी चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन गया। उन्होंने भी स्त्री स्वास्थ्य का अभियान शुरू किया है। 2 अक्टूबर तक बहुत जगह स्त्री
स्वास्थ्य के लिए जितने भी जांचे हैं सब मुफ्त किया है। सभी स्त्रियों को आह्वान किया है कि वे अपना स्वास्थ्य के लिए एक बार सब डॉक्टर को मिले और हॉस्पिटल में जाके जांचें कराए वगैरह। तो ये जो सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि स्त्री स्वास्थ्य अच्छा रहे। और आजकल ऐसा है कि हम महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम है रूटीन के, एनीमिया है, ल्यूकोरिया है, वो सबको महिलाएं बहुत इग्नोर करती हैं, माने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती। वो दूसरों के घर वालों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में, घर के कामों में रहती हैं और इसको महत्व नहीं देती हैं। तो मेरी सब महिलाओं से अपील है कि भाई अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, जिसकी हमारे प्रधानमंत्री जी कल्पना कर रहे हैं कि स्वस्थ राष्ट्र होगा। तो आज मैं बात करूंगी कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज, माने जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो हमारे घरेलू उपचार से ठीक भी हो सकती है, और हमारे पोषण के लिए, क्योंकि पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं क्या करती है कि जो लास्ट में थोड़ा बहुत बचा है घर में वही खा लेती हैं, ध्यान नहीं देती कि हमें सब न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो और कई बार परिस्थिति भी ऐसी होती है, इकोनॉमिकल, इसलिए भी ऐसा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं आज उस पर बताऊंगी कि आपके किचन में जो सामान है या आपका किचन गार्डन जो आसपास छोटा मोटा आप कुछ उगा सकते हैं और उससे भी कैसे आप पोषण ले सकते हैं, उस पर आज मैं बात करूंगी। नेक्स्ट। अब ये पोषण वाटिका, तो पहले तो ये है कि पोषण वाटिका किसको कहेंगे ना, कि हमारे घर के आसपास हम जो कुछ उगा सकते हैं, जितनी भी जगह है उसमें जो उगाएंगे, और उसमें ऐसी चीजें उगाएंगे जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और न्यूट्रिशन उससे मिल सकता है। तो उसमें जैसे अर्बन एरिया में प्रॉब्लम है, लोग ये कहते हैं हमारे पास जमीन ही नहीं है, कोई बात नहीं, टेरेस गार्डन हो सकता है, वर्टिकल गार्डन, आजकल बहुत कुछ लोग इनोवेशन कर रहे हैं। और गमले रखने की अगर थोड़ी जगह है तो जितने गमले उगा सकते हैं वो करना चाहिए। और रूरल एरिया में तो थोड़ा बहुत बैकयार्ड वगैरह होता ही है, सबके पास कुछ आंगन होता है, तो उसमें आप चीजें उगा के, छोटी छोटी और बहुत कॉमन चीजें उगा के उससे आप फायदा ले सकते हो। जैसे ट्री स्पीसीज, क्लाइंबर, जिसके पास जैसी जगह है वैसा उगा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं न्यूट्रिएंट पाने के लिए। नेक्स्ट। अब इसकी जरूरत क्यों लग रही है, तो पहला तो ये कि इकोनॉमिकल कंडीशन, कि फैमिली की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो बाजार में बहुत कॉस्टली मिलता है उसमें कटौती होती है और नहीं खाते हैं, और स्पेशली कुछ आता भी है तो पहले बच्चों को और हस्बैंड को महिला खिलाती है, खुद नहीं खाती हैं। दूसरा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, माने ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है अपने पास, खाना तो होता है मगर सही खाना नहीं होता है, खाने की जो आदतें हैं वो सही नहीं होती, तो उसके कारण भी ऐसा होता है। और जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल में ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो भी हमारे विटामिन वगैरह हैं वो मैक्सिमम मिलते हैं, तो वो खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, मगर वो जनरली महिलाएं अवॉइड करती हैं। नेक्स्ट। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम अगर इसको उगाएंगे छोटी मोटी चीजें घर के आसपास, तो एक तो आराम से हमको मिल जाएगा, सब चीजें फ्रेश मिलेगी, केमिकल फ्री मिलेगी। और अगर ज्यादा थोड़ी बहुत जगह है और ज्यादा कुछ उग जाता है तो बेच सकते हैं, तो एक तरह से
इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। और अर्बन उसमें तो क्या होता है कि बच्चों को इन सब की वैल्यू ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या चीज है क्या नहीं है, कहाँ से आता है खाना, कैसे आता है, कुछ पता नहीं होता। तो अगर ये सब हम घर में थोड़ा बहुत करते हैं तो बच्चों को भी एक फूड वैल्यू भी बढ़ती है और उनको भी पता चलता है कि कैसे ग्रो होता है प्लांट और कैसे खाना कहाँ से आता है, कैसे आता है। और अगर मैंने आयुर्वेद कहता है ना कि जहाँ के रहने वाले हो, मैंने अपना जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास जो उगने वाली चीज है वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होती हैं। तो इसलिए जो चीजें उगाओ वो वही उगाओ, एक तो सीजनल और रीजनल, ये दोनों चीजें जरूर ध्यान रखनी है। हमें एक्सोटिक कुछ उगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सीजनल और रीजनल माने उस रीजन में होने वाली और जिस सीजन में जो चीज होती है वो अगर उगाते हैं तो बहुत अच्छे से उगती है और बहुत अच्छे से उसको आप बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट। अब इसमें क्योंकि हम थोड़ी महिला स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कॉमन वेजिटेबल फ्रूट्स तो उगाना ही चाहिए, उसके साथ हम कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी ऐसी छोटी मोटी उगा सकते हैं जो न्यूट्रिएंट तो है ही है, साथ में मेडिसिन का भी काम करती हैं। और जो आयुर्वेद में मेन है कहा है कि 6 ओरस रोज लेने चाहिए, कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। माने हमें रोज अगर ये सब चीजें लेते हैं तो हम जिसको मॉडर्न में कहते हैं कि होल डाइट, वैसा हमारा आयुर्वेद का अपने आप हो जाता है अगर सब रस का हम सेवन करते हैं तो। और दूसरा यह है कि हम पोषण चाहे कितना भी दे, पर अगर हमारा अग्नि डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं। खाते रहो, अगर पचेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा शरीर में तो क्या फायदा है। तो हम जो ये 6 रस की बात करते हैं, अगर आप 6 रस लेते हो तो आपकी अग्नि भी सही रहती है, और जब आपके पाचन अग्नि सही रहेगी तो आप जो खाओगे वो अच्छे से पचेगा, शरीर में एब्जॉर्ब होगा और उसका आपको फायदा भी मिलेगा। तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एक तो यह है कि डाइजेशन सही हो, फूड अलग अलग टेस्ट के लेने चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और पोषण वाटिका करेंगे तो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह आएगा जो आपके खाने को और अच्छा बनाएगा, जिसका आप इंक्लूड करेंगे तो। और जो मैंने कहा कि सीजनल और रीजनल दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खाना वही खाए जो उस एरिया का हो। तो और जो खाना है वो सीजन का ही खाए, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा हो गया कि दिसंबर में हम तरबूज खा रहे हैं या क्या कहते हैं उसका जो ठंड के फ्रूट्स हैं वो खा रहे हैं, गर्मी के फ्रूट्स आम खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, तो ये गलत है। हमें वही फ्रूट खाने चाहिए जो तब उगते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों में कि सीजनल खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सीजन का अगर तब उगा हुआ खाते हैं तो वो आपको बेनिफिट ही देगा, वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, कोई रोग नहीं होने देगा। नेक्स्ट। अब जैसे ये तो आयुर्वेद वाले ही यहाँ सब हैं जिनको ये सब पता है कि कौन सा रस किसमें। नेक्स्ट। अब ये जस्ट एक ऑप्शंस है कि अगर फ्रूट ट्री उगानी है तो अमरूद, नींबू, सीताफल, करोंदा, ये सब के साथ हम अनार, केला, आंवला, बेल, ये भी फ्रूट्स में आता है, मगर ये आयुर्वेद की दृष्टि से औषधीय भी हैं। ऐसे ही लीफी वेजिटेबल्स उगाते हैं तो पालक, मेथी, पुदीना, चौलाई, धनिया और पोई शाक, लोनिका, मंडुकपर्णी, ये सब उगा सकते हैं जो गमले में उग जाता है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें
जो एक सामान्य वेजिटेबल के रूप में भी काम आती है और आयुर्वेद में भी एज अ औषधि भी काम आती है। फिर इस तरह मैंने टमाटर और सब्जियों में बैंगन, भिंडी, टमाटर, करेला, ककोड़ा, बहुत कुछ है इसमें। सहीजन, अग्निमंत, इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है और वो हमारे औषधीय भी है। ऐसे रूट माने कंदमूल जिसको हम बोलते हैं, तो आलू, शकरकंदी, गाजर, मूली और ऐसे विदारी कंद, शतावरी, चुकंदर, प्याज, लहसुन, ये सब आयुर्वेद की दृष्टि से औषध भी हैं। नेक्स्ट। अब थोड़े से मैं उदाहरण एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे आमल की, आंवला। आंवला आराम से अगर थोड़ी जगह है घर में तो आंवले का आप पेड़ उगा सकते हो, क्योंकि वो मीडियम साइज का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता और बहुत सालों रहता है और आंवले बहुत भरपूर आते हैं, है ना। तो जिसको आयुर्वेद में हम आमल की कहेंगे या इंडियन गुसबेरी इंग्लिश में कहते हैं। इसके फ्रूट्स का यूज आयुर्वेद में तो इसको वयस्थापन कहा है और रिजेनरेटिव है, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनोमोड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे उसके आप मेडिकल वो फायदे बता सकते हो। विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन एंड कैल्शियम भी उसमें है। और आपको सबको पता है कि पोषण में जब आयरन की बात, एनीमिया की बात आती है, आयरन तो देते हैं, ऊपर से गोलियां खिलाते हैं, मगर अगर विटामिन सी नहीं है शरीर में या विटामिन सी का अच्छे से कंजप्शन हम नहीं कर रहे, तो वो आयरन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है ढंग से। तो इसलिए आंवला है, उसको हम कोई भी आयरन लेते हैं तो उसके साथ, और अपने आप आंवला में भी आयरन और कैल्शियम है। तो आंवला का एक फ्रूट अगर हम रोज खाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आंवले के इतने सारे गुण हैं। वो स्किन के ऊपर, बाल के ऊपर, आंखों के लिए, डाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए, मतलब बहुत सारे यूज हम आंवले के कर सकते हैं। और आंवला हम हर रूप में खा सकते हैं, जैसे उसका कच्चा फ्रूट लेके सीधा खा सकते हैं, उसको उबाल के खा सकते हैं, उसका अचार बना के खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, उसका मुरब्बा बना के खा सकते हैं, उसका च्यवनप्राश बना के खा सकते हैं। माने किसी भी रूप में, आंवला सुखा के उसका पाउडर बना के खा लो, हर रूप में आप आंवला खा सकते हो। और आंवले का जो विटामिन सी है वो किसी भी रूप में आप आंवला लेंगे तो वो विटामिन सी आपके शरीर को जरूर मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और कई बार आयुर्वेद वालों को लोग प्रश्न करते हैं कि विटामिन सी को तो गर्म करने से उड़ जाता है, तो आप कहते हो कि आंवले का च्यवनप्राश किया, जिसको 16 घंटा पिष्टी को भूना, उसमें कहाँ से विटामिन सी बचेगा, और आप क्लेम क्यों करते हो कि विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो आंवले में जो साथ में कशेलापन है ना, टेनिन है, उसका अल्वेसिक एसिड जो है वो विटामिन सी को रिटेन करके रखता है, ये उसकी स्पेशलिटी है। इसलिए आंवला को चाहे कितना गर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका विटामिन सी रहता ही है, रिटेन रहता है। इसलिए आप आंवले को किसी भी रूप में लोगे तो विटामिन सी आपको मिलेगा ही मिलेगा, निश्चिंत है। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे के बदले हमें कहना चाहिए कि आंवला इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। नेक्स्ट। बिल्व, बेल, है ना, जो हमारे देश में धार्मिक रूप से भी बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा होती है, तो वो सही में इतना यूजफुल है, इसलिए उसको भी धर्म के साथ जोड़ दिया है। ये बहुत अच्छा डाइजेशन भी करता है और प्रीबायोटिक है ना। आजकल
प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक बाजार में सब बहुत अवेलेबल है, पर ये सिंपल बेल चूर्णा है ना, वो प्रीबायोटिक का काम करता है बहुत अच्छा। और माने इसके फल भी काम आते हैं, उसमें कच्चे फल भी काम आते हैं, पक्के फल तो अर्धपक्व जो होता है, माने पूरा पका भी ना हो और एकदम कच्चा नहीं, अर्धपक्व फल है, वो आयुर्वेद की दृष्टि से डायरिया रोकने के लिए और पेट की गड़बड़ियों में बहुत मदद करता है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप। उसको अर्धपक्व को निकाल के, गुज का गुदा निकाल के सुखा के रख ले घर में, कभी भी उसका उपयोग करें तो आपकी छोटी मोटी बीमारियों में काम करेगा। ऐसे पके फल हैं, वो लू को रोकता है, तो गर्मियों में इसको शरबत बना के लेते हैं, जिससे गर्मी से बचाव होता है, लू से बचाव होता है। उसके जो पत्ते हैं वो एंटी डायबिटिक हैं, और उसका भी यूज डायबिटीज में, मैंने पत्ते सुखा के रख लो, उसका पाउडर लो, और डायबिटीज में यूज होगा। तो ये तो इसके मेडिकल यूज हो गए। उसके सिवा इसमें भी माने प्रोटीन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन सी है, और मिनरल्स बहुत सारे हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, फाइबर हैं। तो न्यूट्रिशन की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है, और मेडिकल की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट, केला। केले जनरली कहीं भी उग जाते हैं देश में, मेरे ख्याल से हर प्रदेश में केले उग जाते हैं, और केले का पेड़ कोई बहुत ज्यादा जगह भी नहीं रोकता, पतला लंबा जाता है, और थोड़ी भी किसी के पास जगह है, केले का पौधा को लगा सकते हैं, जो उग जाएगा, और बहुत सारे केले आते हैं इस पे। और केला है वो आयुर्वेद की दृष्टि से नोट डाउट पचने में भारी है, दुर्जरम बताया, मगर केला अगर 1 या 2 रोज खाते हैं तो एक तो वो फुलफिलनेस की एक फीलिंग देता है, आपका पेट भर देता है, आपको कुछ और खाना नहीं मिला, 1-2-3 केले ही खा लिए तो आपको उस वक्त के भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये उसकी विशेषता है। साथ में छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हो। ल्यूकोरिया के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी होती है, उसमें भी केले का प्रयोग अगर रोज करते हैं, 1 या 2 केले खाते हैं तो अच्छा। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी, जब बहुत थक गए, बहुत भूख लगी है, कुछ सूझ नहीं रहा, तो आप 2 केले खा लो तो होता है। तो और मेनोपॉज के बाद भी केला खाने को बहुत बोलते हैं कि केला रोज खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी है, पोटेशियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारे मिनरल्स हैं उसमें। तो इन सब के कारण केला बहुत अच्छा है। और कच्चा केला है वो ब्लड ग्लूकोज को भी मेंटेन करता है, उसका लेवल मेंटेन करता है। तो कच्चा केला भी बहुत अच्छा है, और पक्का केला भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए केले को घर में अगर लगा लेते हैं, गार्डन में छोटा सा एक पौधा उग जाएगा, और बहुत सारे केले आपको मिलेंगे, और ये केले के आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनार। एक अनार 100 बीमार हम लोग बोलते ही हैं, और आयुर्वेद में भी सभी चीजों में पथ्य, अनार सदा पथ्य बताया हुआ है कि कोई भी तकलीफ है, कोई भी रोग है, उसमें अनार आप खिला सकते हो। तो अनार का बहुत ही गुणकारी अनार है। और स्पेशली अरुचि में, जैसे खाने का अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, बहुत सारे रोगों में ऐसा होता है, तो उस वक्त अनार खिलाते हैं तो वो बहुत फायदा करता है। आपका डाइजेशन भी अच्छा करता है, साथ में रुचि बढ़ाता है ना, खाने की इच्छा भी बढ़ाता है। तो उस दृष्टि से अनार बहुत अच्छा काम करता है आयुर्वेद में। उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए और इस तरह से भी, और एनीमिया में भी बहुत काम करता है। विटामिन के, सी, फाइबर, प्रोटीन, माने बहुत सारे
न्यूट्रिएंट्स भी उसमें हैं और उसको सीधा खा सकते हैं, जूस बना के ले सकते हैं, सुखा के अनारदाना का यूज होता है, उसकी ग्रीन टी बनती है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इस तरह से अनार हम किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। और अनार का भी बहुत छोटा सा पौधा होता है जो आप थोड़े बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे से हो जाता है, जमीन में भी लगा सकते हैं तभी बहुत अच्छे से उगता है और अनार बहुत अच्छे से उग जाते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अमरूद। अमरूद तो इतना गुणकारी है कि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आपका डाइजेशन बिल्कुल खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, खाना पच नहीं रहा है, कुछ भी हो, आप रोज एक अनार खाना शुरू कर दे सीजन में, रोज खाए, आपका सब कुछ सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम एकदम ठीक हो जाएगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, बूस्ट करती है इम्यूनिटी को। और इसके जो पत्ते हैं वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है उसमें और इंडाइजेशन में पत्ते भी काम आते हैं और फ्रूट्स भी काम आते हैं। और किसको पसंद नहीं, अमरूद सबको पसंद। और अमरूद भी सब जगह ऑलमोस्ट पूरे देश में किसी भी हवामान में जनरली हो ही जाता है। उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, ये सब कुछ न्यूट्रिएंट उसमें से मिल जाता है, रिच फाइबर है, कैल्शियम भी बहुत अच्छा है। तो अमरूद वो भी घर में एकदम आसानी से उगता है और इतने फल आते हैं कि एक फैमिली को कभी कमी नहीं पड़ेगी उसमें से फल खाने में। नेक्स्ट, नींबू। नींबू आप देख रहे थे छोटे गमले में भी हो जाते हैं, तो नींबू का प्लांट आप कहीं भी लगा सकते हो। और हार्ट हेल्थ के लिए है ना, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, किडनी के लिए, स्टोन के लिए, इम्यूनिटी तो विटामिन सी है तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेशन बहुत अच्छा करता है अम्लरस होने से, तो ये हमारी अग्नि को भी ठीक करता है, बाकी बहुत सारे उसके अपने गुण हैं। और विटामिन सी है तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी करता है। तो अगर और कुछ नहीं तो कम से कम एक नींबू निचोड़ के रोज पी ले तो भी बहुत सारे डिजीज से बच सकते हो आप, और बहुत सारे आपको रोगों से ये बचाता है नींबू। बाकी इसमें विटामिन सी एकदम हाई है, बहुत अच्छा है, और पोटेशियम भी है, फ्लेवोनॉइड्स भी हैं, तो ऐसे ये भी, इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत है। और नींबू आप कहीं भी उगा लो, कम से कम एक छोटे से गमले में ही नींबू उगा लो। नेक्स्ट, कोई की सब साग बोलते हैं, बेल चढ़ जाती है, तो इसका कोई जगह नहीं चाहिए कि कहीं भी आप ये उपोदिका की बेल को चढ़ा लो। और उपोदिका आयुर्वेद की दृष्टि से, मैंने एक साग तो है ही है, बहुत लोग इसके पकोड़े बना के भी खाते हैं, साग भी खाते हैं। इसकी दो वैरायटी आती है, एक तो ये जो दिख रही है वो जामुनी है, ग्रीन भी होता है, जो स्टेम पूरा ग्रीन होता है, पत्ते भी ग्रीन होते हैं। तो उसका भी जैसे पत्तों का उपयोग करो, उसका जूस पी लो, कुछ भी उसके टेंडर स्टेम होते हैं वो भी सब्जी में काट के यूज में आते हैं, तो उसको जैसे पालक पालक की सब्जी बनाते हैं वैसे बना सकते हो। ये बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, तो एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम, माने मेनोपॉज के बाद जो महिलाओं में सब प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह कम होता है, तो उसके लिए भी ये अगर इसका साग खाते हैं तो बहुत अच्छा है। विटामिन सी, विटामिन ए, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स है और विटामिन्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। तो इसके मैंने मेडिसिनल यूज भी बहुत है और रूटीन ये सब्जी भी है खाने के लिए, दोनों तरह से। और इसकी पतली बेल कहीं भी चढ़ जाती है, उसके लिए कोई आपको ज्यादा कुछ एफर्ट्स करनी है, एक टुकड़ा इसका कहीं से भी तोड़ के आप लगा दोगे तो उसकी बेल उगना शुरू हो जाएगी और चढ़ जाएगी। आपके घर में चाहे
जगह नहीं है तो खिड़की में भी आप बेल चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, ऐसे ही ये कुल्फा या नोनिया बोलते हैं, जो खट्टा और मोटे मोटे पत्ते होते हैं और खट्टा साग है ये। तो ये भी सब जगह ऑलमोस्ट मिल भी जाता है, और ये गमले में भी उगा लो तो बहुत सारा उग जाएगा, पूरा गमला भर जाता है। ये यूरिनरी डिसऑर्डर जितने भी हैं उसमें काम करता है, ब्लीडिंग में, हेमोरॉइड्स में, माने पाइल्स वगैरह हो, ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह, उन सब में ये बहुत फायदे कारक है। और उसके साथ ही इसमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, जो बी कॉम्प्लेक्स के कारण थकान वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण थकान वगैरह होता है, अगर इसका साग खाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलता है। ये ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है, जो कहते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स चीजें हैं, और साथ में ये मेडिकल यूज भी इसका बहुत अच्छा है। इसको आयुर्वेद में लूनिका कहते हैं, और इसका बहुत उपयोग बताया हुआ है आयुर्वेद में भी। नेक्स्ट, धनिया। धनिया को आप कहीं भी उगा सकते हो, छोटे गमले में, छोटा सा वो मिट्टी का बर्तन कोई हो उसमें लगा लो, प्लास्टिक के बर्तन में लगा लो, कहीं भी लगा लो, धनिया तुरंत उग जाती हैं और बहुत अच्छे से उगती हैं। और आपको पता है कि धनिया के कितने सारे यूज हैं, है ना। ये इसकी फ्रेश चटनी बना के खाओ, इसको कहीं भी गार्निशिंग करो तो एक खाने का स्वाद बदल जाता है, उसकी खुशबू से खाने की इच्छा होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके साथ बर्निंग सेंसेशन कम करता है, मैंने पित्त शमन करता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। सूखा उसका बीज भी जो हमारे किचन में होते हैं, तो वो धनिया सूखा को भी अगर आप थोड़ा कच्चा कूट के पानी में भिगा दे और 3-4 घंटे बाद मसल के अगर वो पानी पीते हैं, तो यूरिनरी इन्फेक्शन में, जलन में या डायरिया में, सब में बहुत फायदा करता है। फांट जिसको बोलेंगे हम, अरे सॉरी, हीम जिसको बोलेंगे हम, तो धान्य हीम, तो वो सूखे बीज का उपयोग कर सकते हैं। और ताजी धनिया मिलती है तो उसका भी रस निकाल के पी सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी ये बहुत काम करता है, क्योंकि ये शीत है और पित्त को शमन करता है। उसके साथ ये सोर्स ऑफ विटामिन के है, ए है, सी है, और बहुत सारे विटामिन ट्रेस मात्रा में भी इसमें है। तो धनिया कहीं भी आप उगा लो, गमले में उगा लो, घर में, या छोटे से कोई भी प्लास्टिक के बर्तन में उगा लो, कहीं भी उग जाती हैं और आपको बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, अगाथी, माने अगत्स्य कहते हैं आयुर्वेद में इसको, लोकल भाषा में अगाथी जिसको बोलते हैं। और इसके पत्ते हैं, उसका यूज नाइट ब्लाइंडनेस में, इसके भी और सहीजना के पत्ते भी, दोनों के पत्ते नाइट ब्लाइंडनेस में बहुत, रेतोंदी जिसको कहते हैं, उसमें बहुत यूजफुल है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, रसायन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस का, अस्थमा वगैरह में भी इसका यूज करोगे तो उससे बहुत फायदा मिलेगा, प्रिवेंशन में फायदा मिलता है। इसमें प्रोटीन भी है, माने आप अगर इसके पत्ते की सब्जी लेते हैं तो आपको प्रोटीन भी मिलेगी, एसेंशियल जितने एमिनो एसिड्स चाहिए शरीर को वो भी मिलता है, कैल्शियम, विटामिन ए, क्योंकि मैंने कहा रतौंधी में काम करता है, विटामिन ए बहुत अच्छा है उसमें, विटामिन सी भी है। तो ये इसके पत्ते
Ma'am, you are on mute. आप म्यूट हो गए मैडम। ओके, अब आ रही है ना आवाज? नेक्स्ट। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तैजना या शिग्रू, आयुर्वेद में शिग्रू बोलते हैं इसको, और मोरिंगो के नाम से आजकल बहुत फेमस हो गया। अब तो लोग बहुत डिमांड करने लगे, समझने लगे मोरिंगो। इसके भी जैसे उसके फूल की सब्जी बनती है, उसके पत्ते की सब्जी बनती है, या पराठे वगैरह में उसके पत्ते डाल दो, उसकी जो फली आती है उसकी सब्जी भी बनती है, सांभर वगैरह में दाल में डाल के खा सकते हैं। मैंने इसका हर तरह से उपयोग आप कर सकते हो और बहुत बेनिफिशियल है। किसी भी तरह के पेन है, जॉइंट्स पेन वगैरह या कहीं भी दर्द है, उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। एंटी बैक्टीरियल एक्शन उसकी बहुत अच्छी, एंटी इंफ्लामेटरी, माने सूजन कहीं भी है तो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है। तो कहीं भी शोथ है, वेदना है, उन सब में इसका उपयोग कर सकते हैं। और अभी मैंने बताया था अगस्त्य के साथ कि नाइट ब्लाइंडनेस में, क्योंकि इसमें भी विटामिन ए भरपूर है इसके पत्ते में, तो रतौंधी में भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है। वीकनेस दूर करता है, जो फीवर के बाद में, ज्वर के बाद जो वीकनेस लगती है ना, किसी को भी बुखार आया उसके बाद, तो वो वीकनेस भी दूर करता है। और ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, माने आप देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी इतनी है और साथ में उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। पर उसमें एक क्वेश्चन जो कोई जनरली बताते नहीं, मोरिंगो बहुत सब खाने लगे, मगर ये उष्ण होता है, तो उसका उष्ण ऋतु में और पित्त प्रकृति वाले को संभल के यूज करना चाहिए। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है, वात और कफ प्रकृति के लिए तो बेस्ट है। नेक्स्ट, शतावरी की भी बहुत पतली बेल चढ़ जाती है, कहीं भी आप गमले में उगा लो, कहीं भी उगा लो, बहुत अच्छे से उसकी बेल चढ़ेगी और नीचे इतने सारे उसके रूट्स आ जाएंगे। मैंने चाहे छोटे से गमले में उगाओ, पूरा गमला भर जाएगा, इतने रूट्स आ जाते हैं और वुमन हेल्थ के लिए बेस्ट है। उस रूट को कहीं भी उसकी बेल चढ़ा लो, उसका एक छोटा सा रूट निकाल के लगा दिया तो बेल आ जाती है, चढ़ जाती है, और फिर उसमें से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रूट्स निकल आते हैं। और उस रूट को आप एज अ मेडिसिन कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हो। और ये महिलाओं के लिए तो संजीवनी एक तरह से कहेंगे कि शतावरी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद माँ का दूध बढ़ाने के लिए, या रिजुनोवेटिव टॉनिक, एक तरह से महिलाओं के लिए टॉनिक का काम भी करती हैं। साथ में इसको फ्रेश भी ले सकते हैं, इसको सुखा के भी यूज कर सकते हैं। उसको सुखा के पाउडर करके रख लो, दूध के साथ लो, फ्रेश सैलेड के जैसे भी खाते हैं। इसको बस सुखाने में एक ध्यान रखना है कि इसके जो रूट्स होते हैं उसको जब सुखाओ तो एक चीरा लगा के फिर सुखाओ, या तो हल्की भाप दे दो। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, अगर आप ऐसे ही सुखाते हैं तो वो मेम्ब्रेन जब तक रहती है वो सूखेगा नहीं और फिर सड़ जाएगा, तो वो मेम्ब्रेन फटना जरूरी है। इसलिए उसको या तो थोड़ी भाप में भाप दे दो तो वो मेम्ब्रेन फट जाती है, या चीरे लगा लो, फिर उसको सुखा लो, बहुत अच्छे से सूख जाएगी। उसका पाउडर रख सकते हो जो 12 मास यूज कर सकते हो। तो ये जो इसके रूट्स हैं, इसका बहुत सारा महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सब में आप शतावरी का यूज कर सकते हो, और महिला की हर स्टेज में शतावरी काम करती हैं। और इसमें स्टेरॉइडल सेपोनिन्स भी हैं, इसी के कारण वो बहुत अच्छा काम देती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके फटाफट मिलते भी हैं। बाकी कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो चीजें महिला को चाहिए, कैल्शियम, वो सब इसमें मिल जाता है।
तो शतावरी का अगर पाउडर करके रख लिया और रोज 1 चम्मच शतावरी पाउडर खाया तो महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्याज। प्याज भी बहुत ही छोटे में उग जाती हैं, कहीं भी उग जाती है। छोटा सा एक चौकोर अपने पास जमीन है तो उसमें आप वो दो, बहुत सारी प्याज आ जाएगी। और प्याज का वैसे हम सब्जी में खाने में तो बहुत ही उपयोग करते हैं, प्याज के बिना तो जनरली लोगों का खाना ही नहीं चलता है। पर ये डाइजेशन बहुत अच्छा करे, पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करती है और ये प्रीबायोटिक के रूप में ये भी प्याज भी काम करती हैं। हीट स्ट्रोक से आपको पता है लू से बचाती हैं, हीट स्ट्रोक से बचाती हैं, इसलिए गर्मी में लोग प्याज का उपयोग करते ही हैं, कच्ची प्याज खाते रहते हैं। उसके सिवा विटामिन सी, B6 और फ्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब चीजें इसमें बहुत है। तो न्यूट्रिशन की दृष्टि से भी प्याज बहुत उपयोगी है और हमारे डाइजेशन वगैरह में गैस वगैरह बनता है तो भी प्याज खाने से फायदा मिलता है, डाइजेशन अच्छा करता है। तो दोनों ओर से प्याज का उपयोग हम कर सकते हैं और बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट, कुष्मांड है ना, कद्दू। कद्दू को तो आपने देखा होगा, आप ट्रेन से वगैरह कहीं भी जर्नी करते हैं तो झोंपड़े होते हैं, उसमें भी ऊपर कद्दू की बेल होती है और बड़े बड़े कद्दू आए दिखते हैं। कद्दू कहीं भी उग जाता है और ऐसे बहुत पतली बेल होती है, फल भले ही बहुत बड़ा होता है, तो उसको कहीं भी चढ़ा के ऐसे छत पे वगैरह रख दिया तो बहुत फैल जाता है और बहुत बड़े बड़े कद्दू उसमें आते हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से ये जितने भी लंग डिजीज है उसमें काम करता है, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, ओबेसिटी माने मोटापा है तो, सेक्सुअल डिजीज में काम माने बल्य, ब्रहण, ये सब उसके गुण बताए हुए हैं। और मेनोरेजिया में काम करता है, अल्सर, पेप्टिक अल्सर वगैरह में बहुत ही इसका फायदा है, माने जो जलन होती है वो कम करता है, एसिडिटी कम करता है, कॉन्स्टिपेशन कम करता है। तो कद्दू के बहुत सारे गुण हैं और कद्दू को भी बहुत सारे तरीके से खा सकते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, उसका पेठा बनता है, उसको कद्दूकस करके खीर बनती है। तो आप इसका भी किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं कद्दू का। और कद्दू आसानी से उगता है और बहुत सारे उसके फायदे, इसमें भी विटामिन B, C, बहुत सारे मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, ये सब हैं। तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसमें से मिल जाते हैं और आप इसका उपयोग आराम से बहुत आसानी से, अगर नहीं भी उगा सकते तो बाजार में भी सबसे सस्ता सब्जी में आता है कद्दू, तो इजीली मिल जाता है। तो कद्दू का उपयोग करिए। कद्दू में बस जो एक ध्यान रखना कि कद्दू थोड़ा सा गैस करता है, इसलिए मेथी से ही छौंकना, हींग और मेथी से जो छौंकने की अपनी परंपरा है, आप उसी तरह छौंकेंगे तो कद्दू आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। नेक्स्ट, पुदीना। पुदीना आपको पता है कहीं भी थोड़ा सा डाल दो, उसकी खुशबू से एकदम खाने का स्वाद, खाने की इच्छा बढ़ जाती है। और ये बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए, माने ये भी पुदीना रुचि भी उत्पन्न करता है, अग्नि भी ठीक करता है, डाइजेशन बहुत अच्छा करता है, बुखार में भी दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक भी उसके गुण हैं। तो आप पुदीना का यूज बहुत आराम से, और वो भी छोटे गमले, धनिया के जैसे पुदीना भी कहीं भी एक डंडी उसकी लगा दी तो पुदीना फैल जाता है, कहीं भी हो जाता है और बहुत सारा बनता है, उग जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, तो इसकी चटनी बना के खा लो आप मिंट की, तो बहुत अच्छा। दूसरा, मुंह की दुर्गंध दूर करता है, माने ऐसे छोटे छोटे और भी उसके बहुत सारे उपयोग हैं। मुहासे वगैरह में भी इसकी पेस्ट बना के लगा दी तो स्किन को भी अच्छा करता है।
तो ऐसे पुदीने के हम बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं और बहुत आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये पर्णयवानी अजवाइन के पत्ते बोलते हैं ना, जिसको इसके पत्ते में अजवाइन की खुशबू आती है, तो इसका भी मैंने, ये भी बहुत अच्छा है। इससे इसकी भी खुशबू से आपको रुचि बढ़ती है, खाने की इच्छा होती है, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा करता है। जिसको भूख नहीं लगती उसके लिए वो बहुत अच्छा है, या जिसको मजा नहीं आता, नोजिया जैसा लगता है, तो उन सब के लिए अगर इसके पत्ते खाते हैं तो बड़ा इफेक्टिव है। इसका डायरिया में भी इसके पत्ते बहुत काम करते हैं। इसके पत्ते की सब्जी बनती है, इस पत्ते के पकोड़े बनते हैं, माने इसका भी आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हो। और इसके जो एसेंशियल, माने इसके पत्ते में तेल रहता है एसेंशियल ऑयल, उसमें कैम्फर माने कपूर होता है, तो आप जानते हो कि कपूर के भी जो उपयोग है उसका भी इसमें फायदा आपको मिलता है। तो ये भी एक टुकड़ा कहीं से भी तोड़ के लाके आपने गमले में लगा दिया तो पूरा गमला भर जाता है, इतना उग जाता है, तो बहुत अच्छे से फैलता है और उसका आप कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, पपाया, पपीता का भी आपने देखा होगा, कई लोगों के घर में पपीते ऐसे उग जाते हैं, उसके बीज कभी गिर गए होते हैं तो निकल आता है पपीता, और वो भी पतला लंबा पेड़ होता है, तो कोई ज्यादा जगह नहीं रोकता। और पपीता पाचन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत सारे एंजाइम्स और एसिड्स उसमें होते हैं, और ये खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, पचाता है, और कॉन्स्टिपेशन को भी, बंद को भी दूर करता है। उसके सिवा उसमें बहुत सारे विटामिन भरे रहते हैं, विटामिन बी, ए, सी, ये सब भरपूर मात्रा में रहते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। तो पपीते का उपयोग, और पपीता भी कच्चा पक्का दोनों यूज में ले सकते हैं। कच्चे की सब्जी बनती है, पका फ्रूट के जैसे खा सकते हैं, तो कैसे भी पपीते का यूज आप करो, पपीता आपके लिए बेनिफिशियल और 12 मास आते हैं। नेक्स्ट, अस्थि श्रृंखला, ये थोड़ा सा मैंने मेडिसिनली हो गया, जाने दीजिए। नेक्स्ट, तंदुली है, जिसको चौलाई की सब्जी हम कहते हैं ना, तो चौलाई का साग, ये बहुत ही अच्छा है और एकदम रिच सोर्स ऑफ आयरन और विटामिन्स है, और इसमें सोडियम, पोटेशियम, थायमीन, माने बहुत सारी चीजें इसमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और कहीं भी उगता है, आपने देखा होगा चौलाई आपको कहीं भी रास्ते चलते भी दिख जाती हैं, और अगर आप थोड़े से छोटी से जगह में या छोटे से गमले में भी उगा देंगे तो ये काफी हो जाएगी। और ये एंटी डायबिटिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और इसका साग तो बहुत टेस्टी लगता ही है, इम्यूनोमोड्यूलेटरी भी है, तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी करती है। तो इसमें आयरन भरपूर है, तो रिच सोर्स ऑफ आयरन है। मैंने, हम जो कहते हैं ना कि पालक बहुत अच्छा है, पर पालक से भी बथुआ और चौलाई, उसमें आयरन और ज्यादा है, तो हमें उसका यूज करना चाहिए। और ये सब चीजें बड़ी आसानी से, मैंने चौलाई तो कहीं भी किसी गार्डन में भी जाओगे बीच बीच में उगी दिख जाएगी, बहुत दिख जाती है, और बहुत जगह के ल्यूकोरिया वगैरह जो महिलाओं के रोग है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट, लेमन ग्रास, ये भी आप कहीं भी एक छोटे से गमले में उगा लो तो बहुत उग जाता है, और उसको आप पत्ते को चाय बाई में डाल के पी सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं। ये मच्छर वगैरह से भी बचाता है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल में रखता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है उसकी। तो इसका मैंने, और बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे उसके फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में उसका यूज होता है,
क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, उससे खाने की इंसान की इच्छा बढ़ जाती है। और इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, विटामिन, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हैं, और ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे ही गमले में उगने वाली चीज है। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। तो मेरा फिर से एक बार सब महिलाओं से निवेदन है कि इसमें से जो आपके पास जैसी जगह है और जैसी सुविधा है, जो उगा सकते हैं उतनी चीजें उगाइए, उसका उपयोग करिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने सब न्यूट्रिशन मिल जाए उसकी व्यवस्था आप खुद ही करें, खुद ही सब करें तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई भी डाउट है तो वो मैम से पूछ सकते हैं। Ma'am, I had a query, Dr. Ruchi. So मैम, जैसे मोरिंगा है, नॉर्दर्न रीजन में हम इसको इतना लेते नहीं है, मतलब नॉर्थ इंडिया में मोरिंगा जो है, आई थिंक इट इज अभी थोड़े ही टाइम पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारी डाइट में, स्पेशली हमारे पीएम ने जब से एडवोकेट किया है इसको। तो मैम मतलब जैसे ये है तो विल इट सूट आवर प्रकृति, वी कैन टेक इट रेगुलरली आल्सो, लाइक इसका पाउडर वगैरह आजकल मार्केट में भी आ रहा है, सो वी कैन टेक इट रेगुलरली आल्सो। हाँ, रेगुलरली ले सकते हैं, बस मैंने कहा वो कि उष्ण ऋतु और पित्त प्रकृति को छोड़ दीजिए, उसको कम लीजिए, क्योंकि जी जी वो उष्ण है बस, बाकी उसके बहुत यूज है और बहुत अच्छा है। राइट मैम, फ्रॉम पाउडर टू हमारे जो अदर डाइटरी आइटम है वी शुड इंक्लूड इट। पाउडर ले सकते हैं, उसके पत्ते को आप पराठा में मिला के, पराठे के आटे में मिला के, या भरवान करके भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के भी अच्छी लगती है, टेस्टी। और उसकी फली है वो दाल में डाल दीजिए, सांभर में डाल दीजिए, फली की भी सब्जी बनती है। राइट उसके मैम, फूल की भी सब्जी बनती है। मैंने नॉर्थ एरिया में, राजस्थान वगैरह में तो बहुत खाते हैं इसके फूलों की सब्जी भी। राइट मैम। मैम एक चीज और which I noted in your presentation is that you have told in Chyawanprash what happens ki vitamin C is preserved by the tannins, the ellagic acid. So this was a new information for us, and thank you for bringing this to us, ma'am. वेलकम। मैम गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ डाबर से। मैम यू मेंशन्ड अबाउट केला, बनाना, बट कैन इट बी गिवन टू द डायबिटिक्स आल्सो? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था, बिकॉज केला कंटेन्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सो इट माइट इंप्रूव। कच्चा केला है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करता है। अपक्व, अपक्व, कच्चा। कच्चा केला, ओके ओके, राइट, ओके मैम, थैंक यू। Good evening, madam. गुड इवनिंग। Myself Dr. Meenakshi Desai from Multani Pharmaceuticals Limited. मैम जो आपने कुष्मांड के लिए बताया था, जी, वो जो कुष्मांड जो जिसका पिक्चर दिख रहा था, क्या उससे हम पेठा बनाते हैं, और जो सब्जी के लिए भी क्या यही यूज करना चाहिए, या फिर एक ऑरेंज शेड में या व्हाइट शेड में? दोनों कुष्मांड यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, कोई भी कुष्मांड यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेरी और है डॉक्टर रुचि दिस साइड, लाइक आजकल मार्केट में एक फैड आता है कि ये जो कुष्मांड है या वाइट वाला जो पेठा आता है, इसका जूस भी इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, जी, so that can also be taken on a regular basis. कर सकते हैं, पर क्या है कि लोग अतिरेक कर देते हैं, अच्छा है करके बहुत सारे जी। लेते, तो उसका आयुर्वेद में वातकर बताया है ना, तो कहीं ना कहीं वो फिर ज्यादा लेते हैं तो नुकसान करता है। तो इसलिए लो तो फिर उसको दवाई के जैसे ही लो,
10-20 ml, उससे ज्यादा मत लो। राइट मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आई हैव ए क्वेश्चन मैम। एशगॉट जूस के बारे में आजकल बहुत पीते हैं लोग, तो जैसा आपने बताया कि इसका डोजेस कंट्रोल करना चाहिए, तो मैम क्या इससे कैल्शियम ऑक्सलेट कंटेंट होने की वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं? जूस से तो नहीं होंगे, जूस से होने की संभावना कम है। हेलो, आप मुझे सुन रहे हो? यस मैम, यस। ओके, तो बहुत लोगों का ये क्वेरी था कि एशगॉट जूस ज़्यादा लेने से उनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ गई है। मैं इसीलिए पहले बोली कि ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से भी वो बात कर है ना, तो ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके मैम, तो एक साथ कितने दिन तक सेवन कर सकते हैं? मान लीजिए 7 दिन की 21 दिन ऐसा। हाँ, म्हणजे आप 21 दिन तक सेवन करके फिर थोड़ा सा ब्रेक जरूर दो, फिर से करो तो चलेगा। ओके मैम, थैंक यू। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि पोई शाक जो है जो आपने बताया, उसका कौन सा वैरायटी सबसे बेस्ट रहता है? रेड वाला, वो पर्पल वाला कि ग्रीन वाला? रेड वाला है, उसमें आयरन ज्यादा है, आयरन कैल्शियम। बाकी दोनों वेराइटी अच्छी है, साग में सब में वैसे आयरन कैल्शियम मिलता ही है। क्या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे जिनको एलर्जी वगैरह है, क्या वो उनको नहीं लेना चाहिए ऐसा? ऐसा आयुर्वेद ने तो कुछ नहीं बताया है, बाकी तो पर्सनली किसी को एलर्जी हो सकती है पर्टिकुलर चीजों की, वो अलग बात है। ओके, कोई मना नहीं किया है। थैंक यू सो मच। मैम मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि अजवाइन के पत्तों का एक चित्र था, तो वो अजवाइन के पत्ते की सब्जी या फिर उसकी पकौड़ी बनाते हैं, तो उसका मात्रा कैसे समझना चाहिए कि एक हमने कितनी कंज्यूम करना चाहिए एक इंसान है प्रति व्यक्ति, क्योंकि वो कहीं हीट ना करे या नेजल ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो, क्योंकि वो अजवाइन है। आपको अगर गर्मी में लेते हो ना, क्योंकि वो भी उष्ण है, जी तो अगर गर्मी में लेते हो ना, तब क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए। 5-7 पत्ते से ज्यादा ना खाए एक इंसान। जी, बाकी ठंड के सीजन में वगैरह बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये सब्जी के लिए उपयुक्त तो नहीं रहेगी, 5-7 पत्तों की सब्जी बहुत कम बनेगी। हाँ, माने गर्मी में आप उसको ठंडी में खा सकते हो, या जी बारिश के सीजन में भी खा सकते हो, क्योंकि तब डाइजेशन वैसे ही खराब होता है, तो ये डाइजेशन सही करता है। जी मैम। मैम सेम कंफ्यूजन मुंगने की जो होता है, जो सहीजन ड्रम स्टिक की जो लीव्स है, अभी बहुत फैट है उसका, ड्रम स्टिक लीव्स की हर चीजें आने लगी है, बिस्किट्स में, कुकीज में। तो सब्जियां तो बनाए नहीं है क्योंकि चलन में नहीं है, पर उसका इसकी हीटिंग इफेक्ट भी बहुत है मैम, ने उष्ण गुण बड़ा जल्दी बढ़ता है उससे, तो उसका वही भी मैंने पहले इसीलिए बोला था कि पित्त प्रकृति और उष्ण ऋतु का ध्यान रखना है। जी, तो उसके पर जैसा बिस्किट वगैरह में आता है ना, वो तो बहुत थोड़ा सा आता है। ये तो मार्केटिंग का एक फंडा है कि मोरिंगा है उसमें ऐसा, क्योंकि वो तो कड़वा होता है, वो कुकीज वगैरह में ज्यादा नहीं डलता, वरना उनका स्वाद बिगड़ जाता है। वो तो बहुत जरा सा होता है, उतना खाने में तो कुछ नहीं होगा। पर तो हाँ, उसकी सब्जी खानी है तो जरूर सचेत रहना चाहिए। क्या क्या खानी है तो? सब्जी। अच्छा हाँ जी, यानी उसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि पत्तों का आप सुखा लो, उसका चूरा बना लो, फिर आप एक क्वांटिटी में ले सकोगे, जैसे पाव चम्मच आपने लिया सप्ताह में 1-2 बार, इस तरह से बिल्कुल तो शायद वो बिल्कुल। ठीक रहेगा। ठीक। मैम एक, जैसे आज तो हमारा किचन गार्डन पे ज्यादा था, एक चीज और थी, जैसे मिलेट्स, कुधान्य या फिर श्री धान्य, इसका चलन भी बहुत बढ़ गया है अभी। लेकिन मिलेट्स को कुधान्य बोलने का भी कारण है आयुर्वेद में, क्योंकि उससे पोषण नहीं होगा, लेकिन अति पोषण को ब्रेक करने के लिए कुधान्य जरूर यूज होना चाहिए इन बिटवीन। तो ऐसा नहीं है, कुधान्य से पोषण मिलता है, अच्छे से मिलता है, मगर कुधान्य ज्यादातर रुक्ष है। जी
तो इसलिए आयुर्वेद ने भाई उसको रोज नहीं खाना बताया हुआ है, मैंने इसीलिए कुधान्य कहा है। जैसे जौ और जौ है वो आपके यव है ना, बार्ले, और जय मीन्स जो ओट्स आजकल खाते हैं जिसको बहुत, तो जय है वो थोड़ा निकृष्ट बताया है कि जौ से निकृष्ट है। उसका मतलब ये नहीं कि वो पोषण नहीं देगा, पर वो ज्यादा ड्राई होता है। जितने भी कुधान्य है ना सब ड्राई है, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि उसमें भी उष्ण और शीत है, जैसे बाजरा उष्ण है। तो ये जो अभी चलन बढ़ गया है वो गलत तरीके से बढ़ रहा है कि मिलेट्स खाओ खाओ खाओ, खाना चाहिए, मगर उसमें भी रीजनल और सीजनल का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू मैम। अभी किसी ने चैट बॉक्स में एक प्रश्न पूछे कि मोरिंगा जूस से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है क्या, हाई ब्लड प्रेशर में? मुझे आइडिया नहीं है, कोई रिसर्च मैंने ऐसा देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकती। ओके मैम। आयुर्वेद में उसको वात शामक जरूर कहा है, तो अगर ऐसे जोड़ते हैं तो मे भी बीपी में काम करता होगा, पर मैंने कोई ऐसा रिसर्च अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं नहीं कुछ उस पर कॉमेंट करूंगी। But as moringa, as ma'am has earlier informed us कि moringa leaves से पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को थोड़ा वो carefully लेना चाहिए, so I think they should avoid having it regularly. Persons with hypertension. नहीं, मैंने उसके दोनों एस्पेक्ट्स है, वात शामक होता है वो भी हाइपरटेंशन में काम करता भी है, पर इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने अभी तक इसका कोई रिसर्च देखा नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ गारंटी से नहीं बोलूंगी। Right ma'am. एक और प्रश्न था मैम, किसी ने पूछा शतावरी को मेनोपॉज के समय लेना चाहिए क्या, फ्रेश शतावरी को? एक्चुअली वो फ्रेश शतावरी में उसके लीव्स चाह रहे या कंद चाह रहे, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन नहीं, कंद ही, लीव तो उसके होते ही नहीं, वो जो होता है वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है जो दिखता है, और वो तो कभी खाया नहीं जाता है, उसका जो भी खाया जाता है मैंने स्टेम ही एक ही का उपयोग है शतावरी में। एक्चुअली नेचुरल एस्ट्रोजन है, इसलिए मेनोपॉज के टाइम पे खा सकते हैं और उलट अच्छा रहता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी मैम कि मेनोपॉज के टाइम पे उसको ले सकते हैं, क्योंकि मेनोपॉजल जो सिंड्रोम है उसमें इरिटेशन और हॉट फ्लैशेस वगैरह हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस वगैरह दूर करता है और आपको स्ट्रेंथ देता है, माने टॉनिक के रूप में तो काम करता ही है, इरिटेशन भी कम करेगा वो। जी, थैंक यू मैम। किसी को और कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। डॉक्टर मीता जी, आई एम डॉक्टर प्रदीप मुल्तानी। आपसे एक ये पूछना था, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी। मैं तो अब क्योंकि है तो वैसे लेडीज के लिए, लेकिन मैं जेंट्स के लिए भी आपसे अनुरोध करूंगा। वैसे तो ये कॉमन है सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लेडीज तो के लिए, आप हमारे मुझे बोला गया तो लेडीज के लिए, इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा फोकस की उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपका है सेशन एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। अब जैसे फॉर सीनियर सिटीजन्स, मेल्स और लेडीज, हमको जो जो आपने रिकमेंड करा, हमको ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर पे हमको क्या सेवन करना चाहिए? वैसे तो सीनियर सिटीजन के लिए ये है कि स्नेह वाला ही चीज खानी चाहिए, रुक्ष आहार कम खाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से तो वात वृद्धि होती है सीनियर सिटीजन में, इसलिए जो भी खाओ स्नेह युक्त खाओ। घी तेल का यूज ज्यादा करना चाहिए, जो एलोपैथी से हम बिल्कुल अलग ओपिनियन रखते हैं इस मामले में। और दूसरा ये है कि जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो ऐसी चीज खानी चाहिए, कि खाना कम खाना चाहिए, पाचन शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए न्यूट्रिशियस चीजें खाओ और कम खाओ। जी, और ये बताइए जी, अगर ये हम जैसे आंवला, घर में हम लोग एक आंवला जरूर खाते हैं रोज, रात को डाल के मैंने पहले ही बोला कि आंवला इन अ डे, कि डॉक्टर हुए, मैं तो यही कहती हूँ, एप्पल के बदले आंवला ही बोलना चाहिए। तो बट नॉन स्टॉप हैविंग दैट इज नॉट एन इशू।
मतलब एक नहीं, एक आमला रोज 365 दिन खाना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको वाग्भट ने नित्य रसायन बताया है। ठीक है जी, नित्य रसायन में आप रोज खा सकते हैं। और रात को सोने से पहले क्या खाना चाहिए? अभी हमारा जो नेचर होता है वो तो घर 7 बजे जब 8 बजे पहुंचे तो सबसे पहले चीज हम तो 1 चम्मच ईसबगोल खाते हैं, जस्ट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। बट ईसबगोल को इसलिए सेवन करते हैं ताकि मतलब वो वैसे भी डाइजेस्टिव के लिए भी अच्छा है, और सुना है कि जाके अपना वो मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। तो इसको भी ईसबगोल ले सकते हैं, त्रिफला भी ले सकते हैं। त्रिफला ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, वो भी आयुर्वेद में रसायन भी बताया है जी, और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, डाइजेशन ठीक करता है। ठीक है। और मुल्तानी जी, जिनको घी ना डाइजेस्ट हो, जी, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ जिनको घी डाइजेस्ट ना हो वो उनको क्या लेना चाहिए? उनको तेल लेना चाहिए। वैसे घी डाइजेस्ट ना हो ऐसा नहीं होता जनरली, जब तक ज्यादा नहीं खाओ। घी खुद ही दीपन पाचन है, दीपन पाचन मेध्य आयुर्वेद बता रहा है। जी 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 जी। एक्चुअली गलत घी होता है ना सर, वो पचता नहीं है। सही घी तो गलत पच या जाए। अति हो जाए। अति तो किसी की भी, अति सर्वत्र वर्जनीय। आप अगर अति लड्डू रोज खाओगे तो नहीं पचेगा इस उम्र में, तो वो अलग बात हो जाती है। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जी हमने अपनी गाय भैंसें रखी हुई हैं, तो उन्हीं से जो दूध आता है उसी का हम घी भी बनाते हैं और उसी को सेवन करते हैं, और साथ में हम लोग वो साथ घी में आपने प्रोसीजर भी, मैंने आयुर्वेद संस्कार बोलता है जिसको, जो प्रोसीजर है कि उसका एटलीस्ट मलाई को जमा के दही बना के उसमें से जो मक्खन निकाल के घी बनाओगे ना, आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल जी, तो उसका सेवन करते हैं, और साथ में आंवले के पेड़ भी हमने अपने मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन में करते हैं। इसीलिए सर आप इस उम्र में इतने स्वस्थ है। और कोई भी हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते, ऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेन ये किचन गार्डन का यही है कि अगर हम घर में लगाएंगे तो हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करेंगे, ना कोई केमिकल डालेंगे, तो वैसे ही न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा छोटी मोटी चीजों से भी। जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, नमस्कार। हिमांशु, मैं अब लीव हो रही हूँ। हाँ जी मैम। On the behalf of organizing committee, I would thank to Dr. Professor Vaidya Geeta Kotecha ma'am for delivering such an enriching lecture. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. And I would like to extend my sincere gratitude to our mentor Vaidya Devinder Trigunaji, President GBRAV, for his continued support, guidance and blessings. I thank our Director Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Kotecha sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shishyas and other scholars who with their presence and active contribution make this webinar a successful one. Thank you all. Namaskar.